اے مسلمانوں، اللہ کے ذکر کرنے سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اے میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر لو، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر بس جاتا ہے وہ دل کبھی سچ مچ کمزور نہیں رہتا۔ دنیا کی مشکلیں انسان کو تھکا سکتی ہے، لوگ اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مال دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ ہر حال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے، اس کے دل میں ایسا سکون اترتا ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے شبد دہرانے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اپنے رب کو یاد کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کے سامنے جھکنا اور ہر کام میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا صبر بڑھتا ہے، اس کا ڈر کم ہوتا ہے اور اس کے اندر اچھے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر صبح اپنی شروعات اللہ کے نام سے کرو، ہر شام اس کا شکر ادا کرو اور ہر مشکل میں اسی سے مدد مانگو۔ یاد رکھو، اصلی طاقت شریر کی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ جس انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے وہ بڑی سے بڑی پریکشا میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب مومن کہتا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اپنے دل کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو، صبح شام کے مسنون اذکار پڑھو، استغفار کرتے رہو اور ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو۔ اللہ کا ذکر انسان کو گھمنڈ سے بچاتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے اور اسے نیک راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب دل بے چین ہو تو لوگوں کے پاس بھاگنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے یاد فرماتا ہے۔ یہی وہ دولت ہے جسے کوئی چور نہیں چرا سکتا، کوئی دشمن نہیں چھین سکتا اور وقت بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو، اپنے بچوں کو دعائیں اور اذکار سکھاؤ، اپنے پریوار کے ساتھ قرآن پڑھو اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرو۔ جو زندگی اللہ کے ذکر سے جڑ جاتی ہے اس میں برکت، سکون اور امید پید۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناؤ، گناہوں سے توبہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، سچ بولو، امانت کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اصلی طاقت دولت، شہرت یا جسمانی شکتی میں نہیں بلکہ تقوی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جو انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اسے کوئی بھی مصیبت پوری طرح توڑ نہیں سکتی۔ اس لیے ہر دن یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں نیک راستے پر قائم رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زندگی تیری رضا کے مطابق گزرے۔ آمین۔ اے ایمان والو، ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر کیول مسکراتے ہوئے دنوں کے لیے نہیں بلکہ مشکل اور آزمائش کے سمے بھی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب کوئی اپنا ساتھ چھوڑ دے، جب روزی کی فکر ستائے یا بھوشیہ کی چنتا گھیرے، تب سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو شکایتوں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے بھر دو۔ ہر دن کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو، نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بناؤ اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو۔ جب کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھ کر سچے دل سے توبہ کرو، اور جب کوئی کٹھنائی آئے تو صبر اور دعا کا سہارا لو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو رب کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت، گھمنڈ اور حسد کو جگہ مت دو، کیونکہ یہ چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اس کے بجائے رحم، سچائی، امانت داری، انصاف اور اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ اپنے ماتا پتا کا سمان کرو، رشتہ داروں سے اچھا ویوہار کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو اور ضرورت مندوں کی مدد کرو۔
याद रखो, अल्लाह के यहाँ वही इंसान सबसे बेहतर है जो सबसे ज्यादा परहेजगार और नेक अमल करने वाला हो। इसलिए अपनी जिंदगी का हर दिन इस नीयत के साथ गुजारो कि तुम्हारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा करता है तो उसके दिल में ऐसा सुकून उतरता है जिसे दुनिया की कोई ताकत बेहतर है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार और नेक अमल करने वाला हो। इसलिए अपनी जिंदगी का हर दिन इस नीयत के साथ गुजारो कि तुम्हारा हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। जब इंसान अपने रब पर पूरा भरोसा करता है तो उसके दिल में ऐसा सुकून उतरता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अल्लाह हमें अपनी याद में रहने, अपने फराजा अदा करने, नेक रास्ते पर कायम रहने और आखिरत की कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी का हर दिन अल्लाह की याद से शुरू करो और उसी की याद पर खत्म करो। जब सुबह आंख खुले तो अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया ताकि तुम नेक अमल कर सको। जब रात आए तो अपने पूरे दिन का हिसाब लो। अगर कोई गलती हुई हो तो सच्चे दिल से इस्तिगफार करो और यह इरादा करो कि कल उससे बेहतर इंसान बनोगे। याद रखो, अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद करता है जो बार बार उसकी तरफ लौटते हैं और तौबा करते हैं। इसलिए कभी भी अपनी गलतियों की वजह से मायूस मत हो, बल्कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो और अपनी इस्लाह की कोशिश जारी रखो। अपने दिल को कुरान की तिलावत से रोशन करो, अपनी जुबान को जिक्र से तर रखो, अपनी आंखों को हराम से बचाओ, अपने कानों को बुरी बातों से दूर रखो और अपने हाथों को सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करो। हर वह काम जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसके यहाँ कीमती है। इसलिए किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी परेशान इंसान को तसल्ली दो, किसी गरीब की मदद करो और हर इंसान के साथ नरमी और इंसाफ का व्यवहार करो। यही वे अमल है जो ईमान को मजबूत करते हैं और इंसान को अपने रब के करीब ले जाते हैं। दुनिया की चमक दमक हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन नेक अमल और सच्चा ईमान आखिरत में काम आएगा। इसलिए अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत से भर दो। जब भी कोई फैसला करो तो यह सोचो कि क्या इससे अल्लाह राजी होगा। अगर जवाब हाँ हो तो पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो और अगर नहीं हो तो उससे बच जाओ। यही समझदारी है और यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हम सबको अपनी याद में ज्यादा रहने वाला, नमाज की पाबंदी करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, अच्छे अखलाक अपनाने वाला और हर हाल में सब्र व शुक्र करने वाला। ए ईमान वालों, अपने दिलों को हमेशा इस यकीन से भरकर रखो कि अल्लाह हर हाल को जानता है। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर तकलीफ और हर कोशिश उससे छिपी हुई नहीं है। इसलिए जब कभी जिंदगी कठिन लगे तो अपने रब से रिश्ता और मजबूत कर लो। नमाज को बोझ नहीं बल्कि अपने दिल का सुकून बनाओ। कुरान को सिर्फ पढ़ो ही नहीं बल्कि उसके संदेश पर अमल करने की कोशिश भी करो। अपनी जुबान को गीबत, झूठ और बुरी बातों से बचाओ, क्योंकि एक मोमिन की पहचान उसके अच्छे अखलाक और सच्चे किरदार से होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो सब्र और हिकमत से काम लो। अगर तुम्हें कोई नेमत मिले तो घमंड मत करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर किसी परीक्षा का सामना करना पड़े तो यह समझो कि हर आजमाइश इंसान को अपने रब के और करीब आने का अवसर भी देती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखो, पड़ोसियों के हक अदा करो, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करो और हर काम ईमानदारी से करो। याद रखो कि दुनिया की ताकत, दौलत और शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन नेक अमल और तकवा इंसान के लिए आखिरत का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिल से यह दुआ करो कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर, हमें सच बोलने, अमानत निभाने, सब्र करने, शुक्र अदा करने और तेरी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमें ऐसे लोगों में शामिल कर जो तेरी रहमत के हकदार बने, जिनकी जुबान पर तेरा जिक्र हो, जिनके दिल में तेरा खौफ और तेरी मोहब्बत हो और जिनके अमल लोगों के लिए भलाई का जरिया बने। अल्लाह
हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारी कमियों को दूर कर, हमारे ईमान को मजबूत कर और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमा। आमीन। ए मुसलमानों, याद रखो कि अल्लाह की याद वह नूर है जो दिलों के अंधेरे को मिटा देता है। जब इंसान अपने रब को सच्चे दिल से याद करता है तो उसके अंदर सब्र, शुक्र, हिम्मत और उम्मीद पैदा होती है। इसलिए अपने दिन का कोई भी हिस्सा ऐसा न गुजारो जिसमें अल्लाह का जिक्र न हो। सुबह उठकर अपने रब का शुक्र अदा करो, पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, इस्तिगफार करते रहो और हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अगर कभी दिल उदास हो जाए तो लोगों से आबाद रखो और अपने रिश्तों को मोहब्बत, नरमी और इंसाफ से मजबूत बनाओ। याद रखो कि हर दिन जो गुजर जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए हर दिन को ऐसे गुजारो कि अगर आज ही अपने रब से मुलाकात हो जाए तो तुम्हें अपने नेक अमल पर शर्मिंदगी न हो। दुनिया की जिंदगी थोड़े समय की है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपनी मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा उस जिंदगी के लिए रखो जो कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह से हर रोज हिदायत मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और उससे यह दुआ करते रहो कि अल्लाह हमारे दिलों को अपनी याद से कभी गाफिल न होने देना, हमें नमाज की पाबंदी, कुरान से मोहब्बत, सच्चे अखलाक, हलाल रोजी, सब्र, शुक्र और तकवा की दौलत अता फरमा। हमें ऐसे बंदों में शामिल कर जिनसे तू राजी हो और जिनका अंजाम खैर और कामयाबी पर हो। आमीन। ए ईमान वालों, यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह है। यहाँ कभी खुशी आएगी तो कभी गम, कभी आसानी होगी तो कभी कठिनाई, लेकिन मोमिन हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम्हारा दिल मजबूत होता है, तुम्हारी सोच पाक होती है और तुम्हारे अंदर नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत पैदा होती है। इसलिए अपने हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो और हर काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना अपनी आदत बना लो। जब कोई गलती हो जाए तो देर किए बिना सच्चे दिल से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। किसी इंसान को छोटा मत समझो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी पर जुल्म मत करो और किसी का हक मत मारो। अपने दिल को तकब्बुर से बचाओ, क्योंकि घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। अपने अंदर सच्चाई, सब्र, शुक्र, रहम और इंसाफ जैसी खूबियां पैदा करो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी माल हो तो उसमें से जरूरतमंदों का हिस्सा निकालो, क्योंकि सदका सिर्फ माल को कम नहीं करता बल्कि उसमें बरकत का जरिया बनता है। अपने माँ बाप की खिदमत को इबादत समझो, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखो, पड़ोसियों के साथ भलाई करो और हर उस इंसान से नरमी से पेश आओ जिससे तुम्हारा सामना हो। जब भी तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो पहले दुआ करो कि अल्लाह मुझे वही रास्ता दिखा जिसमें तेरी रजा हो। याद रखो, कामयाबी सिर्फ दुनिया की दौलत या शोहरत का नाम नहीं, बल्कि असली कि तुम्हारा दिल अल्लाह की याद से जिंदा रहे, तुम्हारी जुबान सच बोले, तुम्हारे हाथ भलाई करें और तुम्हारे कदम हमेशा नेक रास्ते पर चले। अल्लाह हम सबको मजबूत ईमान, सच्ची तौबा, अच्छे अखलाक, हलाल रोजी, दीन पर इस्तिकामत और दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए। आमीन। ए मुसलमानों, अपने दिलों को हमेशा अल्लाह की याद से आबाद रखो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बस जाता है वहां मायूसी ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। जब तुम सुबह उठो तो अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन नेक अमल करने का मौका दिया। जब तुम रोजी कमाने के लिए निकलो तो हलाल रास्ता अपनाओ और यह यकीन रखो कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर कभी तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले तो शिकायत करने के बजाय सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अपने दिल में किसी के लिए हसद मत रखो, बल्कि दूसरों की भलाई देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने लिए भी भलाई की दुआ मांगो। अपनी जुबान को हमेशा अच्छे अल्फाज का आदी बनाओ, झूठ, गीबत, चुगली और दिल दुखाने वाली बातों से बचो। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, उन्हें नमाज, दुआ और अच्छे अखलाक की आदत सिखाओ। अपने घर को कुरान की तिलावत,
जिक्र और दुआओं से रोशन रखो ताकि उसमें रहमत और सुकून बना रहे। जब किसी गरीब, यतीम या जरूरतमंद को देखो तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करो, क्योंकि अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का जायजा लो। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांगो, अगर कोई गुनाह हुआ हो तो इस्तिगफार करो और अगले दिन बेहतर इंसान बनने का इरादा करो। याद रखो कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपने हर फैसले में यह सोचो कि क्या यह काम अल्लाह को पसंद होगा। अगर जवाब हाँ हो तो पूरे यकीन के साथ उसे करो, और अगर जवाब नहीं हो तो उससे बच जाओ। यही तकवा है और यही मोमिन की पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन रखे, हमें हर तरह के गुनाह से बचाए, हमारी तौबा कबूल फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत करे, हमें नेक अमल की तौफीक दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन पर उसकी रहमत और रजा हो। आमीन। ए ईमान वालों, अपने रब की याद को अपनी सबसे बड़ी दौलत बना लो। कहकर शुक्र अदा करो। अगर कोई मुश्किल आए तो सब्र के साथ दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। याद रखो कि हर आजमाइश हमेशा नहीं रहती और हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। इसलिए मायूसी को अपने दिल में जगह मत दो, बल्कि उम्मीद के साथ नेक अमल करते रहो। अपने फराजा पूरे करो, नमाज की हिफाजत करो, कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाओ और अपने दिल को गुनाहों से पाक रखने की कोशिश करो। अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और रहम का व्यवहार करो। अपने माँ बाप की इज्जत करो। अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखो। किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दो, क्योंकि भलाई का हर छोटा काम भी अल्लाह के यहाँ कीमती है। अपनी नजर की हिफाजत करो। अपनी जुबान को सच बोलने की आदत डालो और अपने दिल में तकब्बुर, हसद और नफरत को जगह मत दो। याद रखो कि इंसान की असली इज्जत उसके तकवा और उसके किरदार में है, न कि उसके माल, शोहरत या ताकत में। हर दिन अपने आप से पूछो कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरा रब राजी हो। अगर कोई कमी नजर आए तो उससे सीखो और अगले दिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद करता है जो लगातार उसकी तरफ लौटते हैं, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अपने दिल को हमेशा दुआ से जोड़े रखो और यह कहते रहो, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा रख, हमें सच्चाई, सब्र, शुक्र और तकवा की दौलत अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में भलाई और कामयाबी अता फरमा। आमीन। ए मुसलमानों, हर दिन यह याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा रब है। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, जब हालात तुम्हारे खिलाफ दिखाई दें और जब तुम्हारी मेहनत का नतीजा देर से मिले, तब भी अपने रब से उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह अपने बंदों की हर पुकार सुनता है और वह वही फैसला करता है जिसमें उनकी भलाई होती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बल्कि सब्र और दुआ को अपना साथी बना लो। अपने दिल को हर रोज कुरान की तिलावत से रोशन करो, नमाज की पाबंदी करो, सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करते रहो और हर काम में उसकी मदद मांगो। जब तुम्हें कोई